جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا ثاقب، اردو لٹریچر اینڈ کلچر انٹرنیشنل سے زیر اہتمام یہ پروگرام لے کر، اور ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور اور نامور شعراء ہمارے ساتھ شامل ہیں آج کے پروگرام میں۔ اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم جیسے حسب مقبول تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں، تو میں کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، خواہ وہ اس کو قانون سازی کے اختیارات بھی مل جائیں، خواہ وہ پرائم منسٹر یا ایگزیکٹو بھی کیوں نہ ہو، وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان سے کہے کہ تم میرے محکوم بن جاؤ، بلکہ سب کو یہ کہنا چاہیے کہ آؤ ہم سب مل کر خدا کے محکوم بنے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو اب حسب معمول جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ پاکستان سے بہت ہی نامور اور مشہور شاعر جناب محمد بقا بلوچ صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور محترم جمشید مسرور صاحب ناروے سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پاکستان سے ظہور چوہان صاحب نے شامل ہونا تھا، لیکن وہ کسی ذاتی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے، اور نصر ملک صاحب ابھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، تو ان کو ہم شامل کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ امبر راجپوت صاحبہ نے ہمارے شامل کرنا تھا پاکستان سے، وہ ان کا کوئی کسی وجہ سے کنیکٹ نہیں ہو رہا، تو امید ہے کہ ابھی ان کا پرابلم ٹھیک ہو جائے گا تب ہم سے کنیکٹ ہو جائیں گے۔ تو سب تمام مہمان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اسٹوڈیو میں۔ اور اب حسب مقبول مشاعرہ شروع کرنے سے ابتدا میں ایک غزل میں اپنی پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد دوسرے شعراء سے ان کا بہترین کلام سننے کی کوشش کریں گے۔ جی، تو آپ سب کی اجازت سے میں غزل کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ ہاں، ایکو پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، آئی ڈونٹ نو۔ تو اب چلے عرض کرتا ہوں۔ باز آئے عشق کی پیشہ وری سے، باز آئے عشق کی پیشہ وری سے، ملنے والا کچھ نہیں ہے کوہ کنی سے، ملنے والا کچھ نہیں ہے کوہ کنی سے، اور رات دن الجھے ہوئے ہیں مخمصے میں، رات دن الجھے ہوئے ہیں مخمصے میں، تیرگی کا ہے تصادم روشنی سے، تیرگی کا ہے تصادم روشنی سے، ہے کہیں آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ یہ آواز آ رہی ہے۔ اچھا، ہیں کہیں دشمن کہیں اپنے پرائے، ہیں کہیں دشمن کہیں اپنے پرائے، ہیں کہیں دشمن کہیں اپنے پرائے، ایک لڑائی ہے مسلسل زندگی سے، ایک لڑائی ہے مسلسل زندگی سے، اور جان من تخلیق شیشے سے ہے اس کی،
जाने मन तख्लीक शीशे से है इसकी, बहुत खूब। मेरा दिल रखना बहुत आहिस्तगी से, मेरा दिल रखना बहुत आहिस्तगी से, और दीदनी है चांद तारों की चमक भी, दीदनी है चांद तारों की चमक भी, दीदनी है चांद तारों की चमक भी, इनके अनवारे बदन की रोशनी है, वाह, इनके अनवारे बदन की रोशनी है। और गुलशने दिल में बहारा चाहता हूँ, गुलशने दिल में बहारा चाहता हूँ, नाज़े नाज़ा आ कभी अपनी खुशी से, वाह, नाज़े नाज़ा आ कभी अपनी खुशी से। शुक्रिया। गुलशने दिल में बहारा चाहता हूँ, नाज़े नाज़ा आ कभी अपनी खुशी से, और कुछ तरसते हैं नवाले को मगर कुछ तरसते हैं नवाले को मगर कुछ, जी रहे हैं किस कदर आसूदगी से, जी रहे हैं किस कदर आसूदगी से, बहुत खूब। और नींद में भी खौफ जाता ही नहीं है, नींद में भी खौफ जाता ही नहीं है, दिल भी अब डरने लगा है रोशनी से, वाह, दिल भी अब डरने लगा है रोशनी से, और आंख से पल पल टपकता अब लहू है, आंख से पल पल टपकता अब लहू है, तौबा कर लो अब तो साकिब आशिकी से, वाह, आंख से पल पल टपकता जब लहू है, तौबा कर लो अब तो साकिब आशिकी से, और बाज आए इश्क की पेशावरी से, मिलने वाला कुछ नहीं है कुहकनी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समातों का। तो अब हम बगैर किसी तमहीद के चलते हैं। मोहतरम जनाब नसर मलिक साहब जो हमारे साथ डेनमार्क से तशरीफ़ लाए हैं, उनको दावत कलाम देते हैं और उनसे को बहुत खूबसूरत जो नज़में लिखते हैं उनसे को नज़म सुनते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी साकिब भाई, लेकिन अफसोस ये है कि मैं आज बतौर शामे आप में शामिल हूँ, मैं कुछ सुना नहीं सकूंगा, और ख़ास तौर पर जमशेद मसरूर, आपको सलाम अर्ज़ है। नॉर्वे की ठंडी ठार फजाओं से आप हमारे साथ शामिल हैं, आज आपको सुनते हैं इंशाअल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और आपके फैले भेजे हुए फूल यकीन कीजिए हमें खुशियों से दो चार कर देते हैं। साकिब भाई आगे चले। आपने देख लिया आज मेरा हुलिया भी कैसा है। मैं पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल ठीक नहीं हूँ और किसी भी तरह माशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। तो चले कोई नहीं, अगर आप जमशेद भाई को आगे इनवाइट करें, कोई ऐसी बात नहीं, आप कंटिन्यू कराएं आगे। बका बलोच साहब हमारे पास तशरीफ रखते हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं इनको देख रहा हूँ। ये मेरे उस्ताद मोहतरम है नसर भाई, शुक्रिया जनाब। माशाअल्लाह, इल्म और रूज इनसे मैंने सीखा है। ये अभी ऑनलाइन में बता रहा हूँ, सबको ऑनलाइन बता रहा हूँ। ये आप इस्लामाबाद में हैं बलोच भाई क्या? जनाब मैं इस वक्त सुई गैस फील्ड पे हूँ। अपने बारे में मैं इस वक्त सुई गैस फील्ड पे हूँ। सुई गैस डेरा बुक्टी में, डेरा बुक्टी बलूचिस्तान। अच्छा, जी हाँ। डेरा बुक्टी था डेरे वालों से। हाँ जी, डेरा बुक्टी था डेरे वालों से, बिल्कुल डेरा वालों से। इस कौम ने क्या कुछ नहीं हमें दिखाया, अल्लाह माफ करे। बस अल्लाह ताला रहम करे जी, अल्लाह ताला। हाँ, मैंने जनाब अकबर बुक्ती साहब से 4 मरतबा टेलीफोन पर इंटरव्यू किया, और मैं वो खुशकिस्मत हूँ जिसे उन्होंने कहा कि मिस्टर मलिक आई डोंट स्पीक उर्दू। तो मैंने उनसे कहा ये मुझे मालूम है, आप मेरे सवालात उर्दू में सुन रहे हैं, ये भी मेरे लिए बायसे फख्र है, लेकिन मैं आपसे दस्तबस्ता अर्ज गुजार करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ उर्दू में जवाब दे दीजिए। तो कहने लगे अच्छा जमानत दो कि मेरी कसम नहीं टूटेगी। देखिए ये उनका बुजुर्गानापन और ये उनकी मोहब्बत। ये सारे इंटरव्यूज जो हैं ये डेनमार्क रेडियो की उर्दू सर्विस से नशर हुए थे और बाद में नवाए वक्त में शाया भी हुए।
زبردست زبردست. ہاں جی، ضیاء کے دور میں نواز صاحب نے اردو کا بائیکاٹ کیا تھا، وہ پھر اردو نہیں بولتے تھے. جی 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 جی. لیکن جی یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مخالف کا نام بھی بڑے عزت و احترام سے لیتے تھے. بے شک ایسے ہی تھا، بالکل ایسے ہی تھا. آج کی طرح یہ نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. آج کل تو بہت گندی سیاست ہو رہی ہے بھائی. آج اللہ رحم کسی کرے. ٹیلی ویژن چینل کو کھول کے سن لیجئے اور بڑے بڑے مہذب ہونے کا دعویٰ کرنے والے اور تہذیب کی اور ثقافت کی بھی کرنے والے جو ہیں وہ زبان استعمال کرتے ہیں جو گھروں میں ان کی ماں بیٹیاں بھی سنتی ہیں. بے شک ایسے ہی ہے، بہت گندی. آپ بحث میں نہ الجھ جائیں. رانا صاحب آگے بجائیے. جناب مسرور صاحب تشریف لے آئے ہیں، ہم تو منتظر ہیں ان کے کچھ کلام سننے کے. جی جی، ہم گزارش کریں کہ محترم جمشید مسرور صاحب سے کہ وہ اپنا کلام ہمیں عنایت کریں. جی جمشید بھائی. وہ نہیں، وہ کوئی کسی کا کوئی ٹیلی فون آ گیا تھا. جی عنایت کریں. وہ ایک میرا خیال ہے وہاں شاید کوئی نیٹ ورک کا مسئلہ ہے ان کو شاید. صحیح سے چلیے اتنی دیر اب اپنا جب تک جمشید بھائی کا نہیں صحیح کنیکشن ہو رہا تو بقا بروش صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا کلام عنایت کریں. جی میں چند شعر آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر. ہماری حد گما سے باہر نکل کے دیکھو. واہ واہ. ہماری حد گما سے باہر نکل کے دیکھو، کبھی تو اپنے مکان سے باہر نکل کے دیکھو. بہت خوب. ہماری حد گما سے باہر نکل کے دیکھو، کبھی تو اپنے مکان سے باہر نکل کے دیکھو. ہمارے دل میں بقا بلا کی کشادگی ہے. ہاں ہمارے دل میں بقا بلا کی کشادگی ہے، کبھی تو صحرائے جہاں سے باہر نکل کے دیکھو. بہت خوب. کبھی تو صحرائے جہاں سے باہر نکل کے دیکھو. غزل کے چند شعر ہیں کہ یہ کس بلندی سے رنگوں کی آبشار گری. ہاں یہ کس بلندی سے رنگوں کی آبشار گری کہ میری موج سخن بھی ستارہ وار گری. واہ. بلندی سے رنگوں کی آبشار گری کہ میری موج سخن بھی ستارہ وار گری. اور زمانہ آج بھی حیراں ہے دیکھ کر جس کو. واہ. زمانہ آج بھی حیراں ہے دیکھ کر جس کو، یہ کیا شبیہ میرے آئینے کے پار گری. واہ 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 واہ. یہ کیا زمانہ آج بھی حیراں ہے دیکھ کر جس کو، یہ کیا شبیہ میرے آئینے کے پار گری. اور طلب کے راستے میں ٹھوکریں مقدر تھیں. طلب کے راستے میں ٹھوکریں مقدر تھیں، حیات اپنے ہی قدموں میں بار بار گری. کیا کہنے. طلب کے راستے میں ٹھوکریں مقدر تھیں، حیات اپنے ہی قدموں میں بار بار گری. اور اسی لیے تو میں اندر سے اتنا بوجھل ہوں. اسی لیے میں اندر سے اتنا بوجھل ہوں کہ میرے دل پہ میرے آنسوؤں کی دھار گری. اسی لیے تو میں اندر سے اتنا بوجھل ہوں. نوازش. اسی لیے تو میں اندر سے اتنا بوجھل ہوں کہ میرے دل پہ میرے آنسوؤں کی دھار گری. اور ودائے یار کا منظر تھا دیدنی صاحب. ودائے یار کا منظر تھا دیدنی صاحب، شجر سے پھول گرے آنکھ سے فوار گری. ودائے یار کا منظر تھا دیدنی صاحب، شجر سے پھول گرے آنکھ سے فوار گری. اور جو رنگ روح میں کھلنے تھے وہ فلک پہ کھلے. جو رنگ روح میں کھلنے تھے وہ فلک پہ کھلے. شفق جو گرنی تھی مجھ میں افق کے پار گری. کیا کہنے بابا. جو رنگ روح میں کھلنے تھے وہ فلک پہ کھلے. شفق جو گرنی تھی مجھ میں افق کے پار گری. یہ کس بلندی سے رنگوں کی آبشار گری کہ میری موج سخن بھی ستارہ وار. بہت اچھی. ودائے یار کا منظر تھا دیدنی صاحب. ودائے یار کا منظر تھا دیدنی صاحب، شجر سے پھول گرے آنکھ سے فوار گری. کیا کہنے بابا. بہت خوب. مہربانی.
سر کوئی اور غزل بھی عنایت کریں یا نظم کوئی یا غزل. چلے مجھے دینے لگے آزار دیکھو, اس کی مجھے دینے لگے آزار دیکھو. بڑا گڑبڑ ہے. جی جی. مجھے دینے لگے آزار دیکھو, دینے لگے آزار دیکھو, یہ میرے جبہ و دستار دیکھو. مجھے دینے لگے آزار دیکھو, یہ میرے جبہ و دستار دیکھو. کسی یوسف کو لایا جا رہا ہے, کسی یوسف کو لایا جا رہا ہے, ذرا یہ گرمی بازار دیکھو. واہ 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 واہ, کیا کسی یوسف کو لایا جا رہا ہے, کیا یہ گرمی بازار دیکھو. کسی یوسف کو لایا جا رہا ہے, ذرا یہ گرمی بازار دیکھو. جی نوازش نوازش. کسی یوسف کو لایا جا رہا ہے, ذرا یہ گرمی بازار دیکھو. اور میری حالت سے تم کو کیا غرض ہے, کیا کہنا, میری حالت سے تم کو کیا غرض ہے, مجھے دیکھو میرا کردار دیکھو. بہت خوب. میری حالت سے تم کو کیا غرض ہے, مجھے دیکھو میرا کردار دیکھو. اور مجھے دیکھ کر تسلی رو پڑا ہے, مجھے دیکھ کر تسلی, مجھے دیکھ کر تسلی رو پڑا ہے. جی ہو جاتا ہے. کیا خوبصورت ہے, مجھے دیکھ کر تسلی رو پڑا ہے. نیٹ ان کا فریز لگتا ہے ہو گیا ہے. وہ نہیں انشاءاللہ. اور آپ خیریت سے ہیں؟ آواز ڈراپ ہو جاتی ہے. ہاں وہی. جی شکریہ جی. نوازش نوازش. جی جی عنایت کریں جی. تسلی دے کے مجھ کو رو پڑا ہے. واہ. مجھے دیکھ کر تسلی رو پڑا ہے, ارے لوگو میرا غمخار دیکھو. ارے لوگو میرا غمخار دیکھو. کیا کہنے, واہ کیا کہنے. مجھے دینے لگے آزار دیکھو, یہ میرے جبہ و دستار دیکھو. نوازش نوازش جناب. شکریہ. کیا کہنے, بہت خوبصورت جی. واہ واہ کیا کہنے. تو محترم ناظرین, میں رانا افتخار احمد ثاقب اور یہ اردو لٹریچر اینڈ کلچر انٹرنیشنل کے زیر اہتمام یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور جو ناظرین ہمیں داد دے رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. اور جس میں بھی کچھ نام میں لوں گا کہ زیادہ لوگوں کے نام تو لینا مشکل ہے. ظفر عوان صاحب ہیں ڈنمارک سے ہمارے ساتھ, اور مشتاق صاحب ہیں, اور بھی اس کے علاوہ اور بہت سے جو ناظرین ہمیں داد دے رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. تو اب ہم چاہیں گے کہ اگر موجود ہیں آن لائن تو ان سے میری دست بستہ گزارش ہے کہ ہمیں اپنے کلام سے کچھ نوازیں. کون؟ ظفر عوان. ہاں لیکن ان کو ابھی وہ شامل نہیں ہو سکتے, ان کے پاس لنک نہیں ہے. تو دیکھ تو رہے ہیں, اگر ان کو میں کہتے ہیں لنک بھیجتا ہوں, اگر شامل ہو سکتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں ان سے. تو اتنی دیر بقا بلوچ صاحب سے کوئی اور غزل بھی سنتے ہیں, اتنی دیر میں ان کو لنک بھیجتا ہوں. میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں پھر اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے تو. جی 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 بالکل. نئے سال کے حوالے سے ایک نظم ہے, چونکہ سال ختم ہونے والا ہے تو ذرا پچھلے سال کا نوا کرتے ہیں. پھیل رہی ہے چاروں جانب نئے سمے کی سندر خوشبو, آنے والے کل کی قسمت نہ میں جانوں نہ جی. پھیل رہی ہے چاروں جانب نئے سمے کی سندر خوشبو, آنے والے کل کی قسمت نہ میں جانوں نہ جانے تو. کل کی کوک سے کیا پھوٹے گا سبزہ رنگت تتلی جگنو, جانے کب سے چمک رہے ہیں پیڑ کی ہر ایک شاخ پہ آنسو. واہ واہ واہ. جانے کب سے چمک رہے ہیں پیڑ کی ہر ایک شاخ پہ آنسو, اور اس پیڑ کی ایک ڈالی پر کوئل کرتی جائے کوکو, کوئل کرتی جائے کوکو, دیکھتی یوں ہی ہر سو. وقت کو جاتے دیکھ رہی ہے اور یہ بیٹھی سوچ رہی ہے. وقت کو جاتے دیکھ رہی ہے اور یہ بیٹھی سوچ رہی ہے. گزرے سال سوچ رہی ہے, گزرے سال نے کیا بخشا ہے, اگلے سمے میں کیا لکھا ہے. پچھلے سال کے باشندے تو اب بھی
पिछले साल के बाशिंदे तो अब भी सजाएं काट रहे हैं, एक दूजे के सोग में बैठे अपने लहू को चाट रहे हैं। क्या पिछले साल के बाशिंदे तो अब भी सजाएं काट रहे हैं, एक दूजे के सोग में बैठे अपने लहू को चाट रहे हैं। देखें अगले साल में क्या हो, पेड़ की शाखों पे क्या होगा, शबनम तारे जुगनू आंसू, कोयल बैठी सोच रही है, वक्त को जाते देख रही है। क्या कहना, वाह वाह वाह, बहुत खूब जी, वाह, क्या खूबसूरती के साथ आपने जिस तरह से चंद एक जगहों पर उर्दू और हिंदी का इम्तिजाज मिलाया है, एक जान डाल दी है आपने। हाँ, लफ्जों का न सिर्फ इंतखाब बल्कि उनका इस्तेमाल, और खास तौर पर जाता समय में जिस तरह आपने एक छोटा सा इशारा कर दिया है आपने, मैं ये कहूँगा क्योंकि हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप सारे आम बात कर रहे हैं जी जी, अगर कोई सोचे तो उस धरती के पूरे दुख दर्द आपने उसमें समेट दिए हैं। बेशक बेशक, उन माओं की आहें जो अपने बेटों की मुंतजर हैं, उन बहनों की दुख दर्द जो अपने भाइयों के हैं, और उन बीवियों के जिनके शौहर। आपने उस जुमले को, उस मिसरे को देखा जाना चाहिए मंजर में। नहीं वैसे अब नसर भाई आपसे भी एक नज़म बनती है वैसे अब। नहीं, मेरी वो ही नज़म जो है वो मुझ पर अभी तक बहुत भारी है, और आज प्रकाश साहब मौजूद है हमारे दरमियान, तो मैं वही सुनाता हूँ, बस उसके बाद नहीं सुनाऊंगा। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, अनायत करें जी जी। तो नहीं, बहुत मजा आया जनाब, क्या खूबसूरत कलाम आपने अनायत किया बका बलोच साहब ने। और आ रहे नसर भाई साहब को मैं ढूंढने गए हैं कोई, तो मैं ये बताता चलूँ कि ये उर्दू लिटरेचर एंड कल्चर इंटरनेशनल जो ये इदारा, हम और इसके ना सिर्फ हम अरबी प्रोग्राम हम करते हैं ये, और ऑनलाइन मुशायरे, और उसके अलावा हमने एक जो खैराती अदारा भी शुरू किया है उम्मत अल हफीज़ ट्रस्ट के नाम से। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो है उनको जो है रोज़गार पे लगाया जाए बजाय कि भीख मांगने के। तो ये इस तरह की वो सिलसिला हमारा वो भी है। तो जब तक ये नसर भाई ढूंढ रहे हैं तो इसलिए मैंने कहा उतनी देर में ये अनाउंसमेंट कर दूं। तो जी नसर भाई, बका साहब जिस खत्ते से आप ताल्लुक़ रखते हैं और आप जो कुछ सूरत हाल है कुछ उसी तरह का ख्याल है, और आपकी समात पे बोझ नहीं बनना चाहता। नहीं करें। उन्वान है नज़म का मुमलकत खुदादाद। वाह जी। और इस उन्वान के पीछे जो पस मंज़र है वो सभी जानते हैं कि ये मुमलकत खुदादाद क्या है, लेकिन मैं इसे आज की पस मंज़र में कैसे देखता हूँ उसका इजहार कुछ यूं किया है। खानकाहों में उलूमों के घोंसले, खानकाहों में उलूमों के घोंसले, मस्जिदों की छतों की मंडेरों पर कौवों की रागनियां, माबद खाने, रस्सागिरों, डाकुओं, कातलों के पनाह घर खुदा को उसके घर से निकाल करके कितने खुश हैं ये रस्सागिर, डाकू, कातल, खानकाहों में बसेरा करने वाले उल्लू, और मस्जिदों में खैरात की रोटियों पर झपटने वाले कौवे। उल्लुओं, रस्सागिरों, कातलों और कौवों की अमाजगाह है मुमलकत खुदादाद। खुदा तो खुद अब वहाँ नहीं है। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। एक छोटी सी और नज़म है जी अनायत, और तू के उन्वान से। जी जी, वाह। अगर कोई ये ख्याल रखता है कि मुझ पर फतह पालेगा तो उसे नींद से फौरन बेदार होकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। वाह वाह। मैंने हर किसी से मोहब्बत की है फकत अपनी जात के सिवा, और मेरा सिर्फ एक ही मजबूत दुश्मन है और वो मैं बजाते खुद हूँ। मैं वो खूबसूरत अक्लमंद जवां मर्द हूँ जिसका दुनिया भर में कोई सानी नहीं। ये मेरी माँ का फैसला है। मैं एक तितली की तरह रंग बखेरने वाला नाजुक तर हूँ और मेरा डंग शहद की मक्खी के डंग की तरह चुभ जाने वाला माँ का फैसला है। मैं वो खूबसूरत अक्लमंद जवां मर्द हूँ जिसका दुनिया भर में कोई सानी नहीं। ये मेरी माँ का फैसला है। मैं एक तितली की तरह रंग बखेरने वाला नाजुक तर हूँ और मेरा डंग शहद की मक्खी के डंग की तरह चुभ जाने वाला है।
वाह मेरे जैसे हौसला और हिम्मत रखने वाले को नीचा दिखाना मुमकिन नहीं, और मुझ जैसे छोटे को कोई बहादुर मार ही नहीं सकता। वाह आहा, वाह 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 और मुझ जैसे छोटे को कोई बहादुर मार ही नहीं सकता। वाह मैं इतना तेज हूँ कि खुदा को भी खबर होने से पहले पहले फतह हासिल कर लेता हूँ। क्या कहना है, लेकिन इन खूबियों के बावजूद कभी कभी न जाने मैं तो कुछ बहुत भी नहीं। बहुत शुक्रिया। वाह 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 जी, वाह क्या बात, वाह वाह जबरदस्त जी, क्या बात है। वाह ये थे वाह नसन वाह मलिक साहब डेनमार्क से हमारे साथ जो शामिल थे। बहुत खूबसूरत नज़में इन्होंने अनायत फरमाई। और अब बका बलोच साहब से भी हमने काफ़ी कलाम सुना, बहुत खूबसूरत कलाम, गज़लें और नज़म सुनी। तो अभी जब हम जाएंगे जमशेद मसरूर साहब की तरफ, जो हमारे साथ नॉर्वे से जुड़े हुए हैं। उनका थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, उम्मीद है कि दोबारा हमें उनका नेट मिल जाएगा। तब तक मैं आपकी इजाज़त से एक गजल के चंद अशआर पेश करता हूँ, जब तक जमशेद जो अदब साहब ने। तकलीफ पा रहा है, जी खास जी तौर पर बलूची और बरोही जुबान में, जी 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 अफसोस ये है कि वो जी दूसरी जुबानों में मुंतकिल नहीं किया जा रहा उस हद तक जैसा कि होना चाहिए। अगरचे कुछ काम हुआ है, यूसुफ खुश्क साहब ने कुछ काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं। इसके बावजूद उर्दू का जो अदब वहाँ तकलीफ पा रहा है, खास तौर पर नज़म में और गज़ल में, जैसा कि आपने भी अभी हमें गज़लें सुनाई, उनसे उस धरती के दुख दर्द, उस धरती से वाबस्ता उनकी तवक्कुआत, और जैसे मैं ये कहूँगा कि पहाड़ों से ऊंची उनकी मोहब्बत है और दरियाओं से गहरी उनकी नफरत है, और इन दोनों के दरमियान रहने के लिए हमें इन दोनों का तवाज़ुन रखना होगा। बदकिस्मती से बेशक है। अब वही लोग कामयाब जा रहे हैं जो इस्लामाबाद के मकनातीस के साथ जुड़े हुए हैं। जी, जो जरा इधर हो गया वो जुड़े कभी हुए, जी जी बिल्कुल जी जी, सही बात। जनाब जमशेद बिल्कुल भाई, ऐसे, आपका बिल्कुल ऐसे, सही कह थोड़ा रहे चलिए सा अब, तंग कर जी रहा जी, है, पहले बहुत ही कि अब हम चलते हैं बहुत इज्जत और एहतराम के साथ मोहतरम जनाब जमशेद मसरूर साहब की तरफ, जो हमारे साथ नॉर्वे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनसे गुजारिश करते हैं कि अपना कलाम हमें अनायत फरमाएं। जनाब जमशेद मसरूर साहब, जी अनायत करें। जमशेद भाई, आपको आवाज आ रही है हमारी? जमशेद के माइक में भी कुछ खराबी है। हम्म, असल में नॉर्वे तो बर्फ में ढका नहीं, वो हुआ है ना, नेटवर्क का तो वहाँ नेट का मसला हो सकता है। हम्म, हमारे यहाँ आज कोई तकरीबन 11 घंटे पूरे मुल्क में टेलीफोनिक सर्विस जो थी वो मुअत्तल रही है। हम तो बस इसी तरह कोई चक्कर है, नेटवर्क का मसला है उनके पास। या जमशेद भाई, आपको आवाज आ रही है हमारी? यार उनकी भी आवाज नहीं आ रही हमारी तरफ, उनका माइक का कोई। जमशेद भाई, आप दोबारा से एंट्री करें, बका आउट भाई, करके मुझे याद आ रहा है कि जी बुक्टी साहब के साहबजादे जमील बुक्टी जो थे, जी जी वो ज्यादा यहाँ हमारे यहाँ डेनमार्क में रहे हैं, जी कोई तकरीबन 1.5 साल तक। जी, जी बड़े अच्छे, बड़े खूबसूरत और बड़े महज़ब इंसान थे। हाँ, जमील साहब बड़े हमारे बड़े रॉयल फैमिली में बड़े पढ़े लिखे और बड़े ही प्यारे, बड़े ही प्यारे। बेशक बेशक, ठीक है। मेरा ख्याल है कि ठीक है। जमशेद साहब का महल, उनको आवाज ना हमारी भी नहीं जा रही, उनकी भी नहीं आ रही, कि महल उनका प्रॉब्लम है। उनको ये करके दोबारा से करता हूँ। उनको आप खुद अटैच कर लें। जी जी, मैं कर रहा हूँ उनको दोबारा से। जी, अब जमशेद भाई, आपको आवाज आ रही हमारी? नहीं, मैंने अर्ज किया था कि मुझे सिर्फ सामाइन में समझे। नहीं नहीं, आप अभी तो अनायत ऐसा करें, अपने कलाम अनायत करें। हाँ मामा तन गोश हैं, आप बस अपना कलाम अनायत करें। क्यों नसर भाई? जमशेद भाई, ये तो कभी ऐसा नहीं हाँ, होगा। हाँ? आप क्यों हमसे फरार हो रहे हैं? यकीन कीजिए, हम तो वो आपके कभी मुंतजर है सुनने के लिए। हमारी तुकबंदी जो है उसको छोड़िए, आप हमें अपने कलाम से वो नेट का मुस्तफीद कीजिए। नहीं आपसे मिलकर हमेशा रूह तक जो है वो सैराब हो जाती है। अल्लाह ताला आपको खुशमुर्रम रखे। अगर और आप लेकिन जी अनायत करें, शमशेद भाई अनायत करें कलाम।
फिर जी चलिए मैं 5-6 शेरों की एक कर दूं आपसे। जी अनायत करें, अनायत करें। तुम इंतजारे बादे बहारी न कम करो, तुम इंतजारे बादे तुम बहारी न कम करो, इंतजारे बादे बहारी न कम करो, आंसू हैं सूख जाएंगे इनका न गम करो। क्या कहने, वाह वाह, आंसू हैं सूख जाएंगे इनका न गम करो। बहुत खूब। क्या कहने, इनका न गम करो, तुम इंतजारे बादे बहारी न कम करो, आंसू हैं सूख जाएंगे इनका न गम करो। उस यासमी बदन से लिपट कर न जो कहीं, उस यासमी बदन से लिपट कर न जो कहीं, उस यासमी बदन से लिपट कर न जो कहीं, अब उन हकायतों को हवा पर रकम करो। अब उन हकायतों को हवा पर रकम करो। क्या कहने जी, क्या कहने, वाह कमाल कर दिया। उस यासमी बदन से लिपट कर न जो कहीं, क्या कहने नसर भाई, अब उन हकायतों को हवा पर रकम करो। बहुत खूब। क्या खूबसूरत इस्तेमाल आए हैं आप। क्या कहने, पाजेब बोलती रहे, पाजेब बोलती रहे, जंगल में मोर भी, वाह वाह, पाजेब बोलती रहे, जंगल में मोर भी, रक्कास था आओ रक्स में ए आहू रम करो। वाह 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 वाह, क्या कहने, पाजेब बोलती रहे, जंगल में मोर भी, वाह, रक्कासा आओ रक्स में ए आहू रम करो। बहुत आराइशे जमाल है, आराइशे जमाल है, गुल गश्ते दिल बरा। वाह 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 वाह, आराइशे जमाल है, गुल गश्ते दिल बरा, गुल गश्ते दिल बरा। इस सैरे बाग के लिए सामा बहम करो। वाह 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 बहम करो। आराइशे जमाल है, आराइशे जमाल है, गुल गश्ते दिल बरा, इस सैरे बाग के लिए सामा बहम करो। सौदागराने मर्ग ने, सौदागराने मर्ग ने मंडी उजाड़ दी। वाह वाह वाह, मर्ग ने मंडी उजाड़ दी, सौदागराने मर्ग ने मंडी उजाड़ दी। तुम कारोबारे ज़ीस्त खुदा की कसम करो। वाह 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 वाह, खुदा की कसम करो। वाह वाह वाह, सौदागराने मर्ग ने मंडी उजाड़ दी। तुम कारोबारे ज़ीस्त खुदा की कसम करो। बहुत खूब। जमशेद मंत्रों में तुम्हें भी तो दर्क है, जमशेद मंत्रों में तो तुम्हें भी तो दर्क है, तुम्हें भी तो दर्क है। जमशेद मंत्रों में तुम्हें भी तो दर्क है, तुम्हें भी मंत्र जंतर आते हैं। जमशेद मंत्रों में तुम्हें भी तो दर्क है, सब नाज़नी अलीन हैं, कुछ तुम ही दम करो। वाह 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 वाह, सब नाज़नी अलीन हैं, कुछ तो दम करो। राणा साहब, जमशेद मंत्रों में तुम्हें भी तो दर्क है, सब नाज़नी अलील हैं, कुछ तुम ही दम करो। वाह, तुम इंतजारे बादे बहारी ना कम करो, आंसू हैं सूख जाएंगे इनका न गम करो। बहुत शुक्रिया, और आपके सब्र का बहुत शुक्रिया, क्योंकि
अरे नहीं और अनायत करें, और अनायत करें। वाह 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 वाह। जमशेद भाई आपने मेहनत की है, कितनी दफा आपने ऑन इन आउट किया है, अब अच्छा? आपको और सुनाए अभी हमें। जी हाँ अभी एक और जुर्माने के तौर पे कुछ जुर्माने के तौर पर है नहीं, इसे पंजाबी में कहते हैं चुंगा दियो। हाँ अब जरा स्टेबल है थोड़ा सा। हाँ जी जी हाँ बिल्कुल जी, अनायत करें। गुम गुम गश्ता सातों को, गुम गश्ता सातों को उठा कर कहाँ से लाएं। वाह, गुमगश्ता सातों को, वाह, गुमगश्ता सातों को, गुमगश्ता सातों को उठा कर कहाँ से लाएं। वाह, जो मर गए वो जिंदगी जाकर कहाँ से लाएं। वाह क्या कहें, वाह वाह। जो मर गए, गुमगश्ता सातों को उठाकर कहाँ से लाएं। जो मर गए वो जिंदगी जाकर कहाँ से लाएं। वाह। लगता है यूं कि रूठ गए एकदम सभी। लगता है यूं कि रूठ गए एकदम सभी। लगता है यूं कि रूठ गए एकदम सभी। रूठे हुए दिनों को मनाकर कहाँ से लाएं। वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब। रूठे हुए दिनों को मनाकर कहाँ से लाएं। बहुत खूब। रूठे हुए दिनों को मनाकर कहाँ से लाएं। बाजारे गुल फरोशा, महीनों से बंद है। वाह, बाजारे गुल फरोशा महीनों से बंद है। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल, बहुत खूब बहुत खूब। बाजारे गुल फरोशा महीनों से बंद है। वाह, महीनों से बंद है। वाह। वो गेसुओं में फूल सजाकर कहाँ से लाएं। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, गेसुओं में कहाँ से फूल सजाकर कहाँ से लाएं। बाजारे गुल फरोशा महीनों से बंद है। वाह, वो गेसुओं में फूल सजाकर कहाँ से लाएं। वो गेसुओं में फूल सजाकर कहाँ से लाएं। वाह, वो गेसुओं में फूल सजाकर कहाँ से लाएं। वाह। अंबारे बुए गुल को जी लाएं। अंबारे बुए गुल को ठिकाना तो याद है। वाह वाह वाह, ठिकाना तो याद। अंबारे बुए गुल को ठिकाना तो याद है। बस इसको अपने घर में बचाकर कहाँ से लाएं। वाह, इसको अपने घर में बचाकर कहाँ। अंबारे बुए गुल को ठिकाना तो याद है। बस इसको अपने घर में बचाकर कहाँ से लाएं। बचाकर कहाँ से लाएं। इसके लिए कुछ अपनी बसीरत भी चाहिए। इसके लिए कुछ अपनी बसीरत भी चाहिए। इसके लिए कुछ अपनी बसीरत भी चाहिए। हम ख्वाब दूसरों को दिखाकर कहाँ से लाएं। वाह। इसके लिए कुछ अपनी बसीरत भी चाहिए। हम ख्वाब दूसरों को दिखाकर कहाँ से लाएं। बहुत खूब। नाका हर एक मोड़ पे बखिया घरों का है। हम ख्वाब दूसरों को दिखाकर कहाँ से लाएं। इसके लिए कुछ अपनी बसीरत भी चाहिए। क्या कहना, हम ख्वाब दूसरों को दिखाकर कहाँ से लाएं। क्या कहना। नाका हर एक मोड़ पे क्या
बखिया गरों का है। नाका हर एक मोड़ पे बखिया गरों का है। वाह, बखिया गरों का है। नाका हर एक मोड़ पे बखिया गरों का है। बहुत खूब। हम चाक दामनी को छुपा कर कहाँ से लाएं। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। अच्छा भाई, वाह वाह। नाका हर एक मोड़ पे बखिया गरों का है। हम चाक दामनी को छुपा कर कहाँ से लाएं। क्या कहना। अब रहने दुश्मना हैं इशारे भी लम्स भी। वाह, अब रहने दुश्मना हैं इशारे भी लम्स भी। सॉरी, मुझे कुछ ठंड लग गई है मेरे ख्याल में, तो मैं नहीं, ठीक जा रहे हैं। अब रहने दुश्मना हैं इशारे भी लम्स भी। अब रहने दुश्मना हैं इशारे भी लम्स भी। क्या कहना। ठीक है, ठीक है। अब रहने दुश्मना हैं इशारे भी लम्स भी। चुपके से उसको हाथ दबाकर कहाँ से लाएं। क्या कहना। अब रहने दुश्मना हैं इशारे भी लम्स भी। क्या कहना। चुपके से उसको हाथ दबाकर कहाँ से लाएं। क्या कहना। जमशेद मकता है, जमशेद दिल बरों में गुरेज और बढ़ गया। वाह, जमशेद दिल बरों में गुरेज और बढ़ गया। क्या कहना। हम कोई उज्र आंख बचाकर कहाँ से लाएं। क्या कहना। जमशेद दिल बरों में गुरेज और बढ़ गया। हम कोई उज्र आंख बचाकर कहाँ से लाएं। क्या कहना। क्या कहना। गुमगस्ता सातों को उठाकर कहाँ से लाएं। जो मर गए वो जिंदगी जाकर कहाँ से लाएं। क्या कहना। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। कलाम किया है जनाब जमशेद मसरूर साहब ने, जो हम नॉर्वे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ और भी अनायत करें हमें। जमशेद भाई, आपके बहुत से दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं। जमील हसन साहब हैं हमारे साथ, और जफर अमान साहब हैं, और दूसरे आपको बहुत चाहत के साथ सुनना चाहते हैं, और हमें कलाम अपना अनायत करें। तनवीर मुफ्ती साहब हमें सुन रहे हैं, वो भी आपका कलाम बहुत पसंद फरमा रहे हैं। एक गजल और सुना दूं? आप हमें और कलाम अपना सुनाइए अगर हुक्म हो तो। जी अनायत कीजिए। हुक्म नहीं, गुजारिश है। गुजारिश, उनकी मोहब्बत है। जी जी, अनायत करें। जी जी, मैं भी गुजारिश ही कर रहा हूँ। जुर्रत को जी, जुर्रत को खौफे जान से ज्यादा किया तो है। जुर्रत को खौफे जान से ज्यादा किया तो है। हिम्मत से बढ़ के एक इरादा किया तो है। क्या कहने, क्या कहने। जुर्रत को खौफे जान से ज्यादा किया तो है। हिम्मत से बढ़ के किया तो है। क्या कहने। हिम्मत से बढ़ के एक अब मगर ये लाश है कि संग मेरे ज़ेरे मगर इस शहर ने एक कद को ज्यादा किया तो है।
हाँ क्या कहने बाबा। ये लाश है कि संग मेरे जेरे पा मगर, ये इस शह ने मेरे कद को ज्यादा किया तो है। मलबे के साथ लोग हटाने पड़े मगर, वाह, मलबे के साथ लोग उठाने पड़े मलबे मगर, के साथ लोग हटाने पड़े मगर, इस शहर को किसी ने कुशादा किया तो है। वाह वाह, क्या कहने बाबा। मलबे के साथ लोग क्या कहने पड़े मगर, ये नेट का मसला है थोड़ा सा। उतरा दलील पर वो नारा हाय जंग से, नसर भाई, वो नारा हाय जंग से, वो नारा हाय जंग से उतरा दलील पर, हमने कोई सवार प्यादा किया तो है। बहुत क्या कहने हमने कोई सवार प्यादा किया तो उतरा दलील पर, बहुत वो नारा हाय जंग से उतरा दलील पर, हमने कोई सवार प्यादा किया तो है, प्यादा किया तो है। बहुत खूब। एक जुब्बा पोश बज़्म में, एक जुब्बा पोश आए हैं घर के खून। वाह, एक जुब्बा पोश बज़्म में, आए हैं करके खून, आए हैं घर के खून, हमने भी इह्तिमाम इबादा किया तो है। वाह वाह, क्या कहने बाबा। एक जुबा पोश बज़्म में आए हैं घर के खून, हमने भी इह्तिमाम इबादा किया तो है। क्या कहने तहरीर पे लगाई अलामत सवाल की। वाह, तकदीर से तहरीर पे लगाई अलामत सवाल की, एक हर्फ इसमें हमने ज्यादा किया तो है। क्या कहने वाह। तहरीर पे लगाई अलामत सवाल की, वाह, एक हर्फ इसमें हमने ज्यादा किया तो है। क्या कहने जी, जारी रखता हूँ। यकीनन हो रही है कि आप अपना इंतखाब खुद सुना रहे हैं, लेकिन आप मेरे लिए और दूसरे इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब सामीन के लिए मुद्दत के बाद जरा अपनी वो गजल भी पेश के बाद, तुम भी न मेरे पाँव की जंजीर देखना। जी, इसके बाद ये भी इनायत कीजिए। हाँ, इनको पहले बांध के रख लेते हैं। जी, वो भी सुनाओ। बिल्कुल जनाब। अच्छा जी, अच्छा, ये तो खत्म होने वाली है। हाँ जी, मक्ता आ गया है, 2-3 शेर छोड़ दिए बीच में से। हरफे जी इनायत करें जी। हरफे गलत को कह दिया जमशेद ने गलत। हरफे गलत को जमशेद ने गलत कह दिया जमशेद ने गलत, इस रस्म का किसी ने इआदा किया तो है। किसी ने इआदा किया तो है। क्या गलत को कह दिया जमशेद ने गलत, इस रस्म का किसी ने इआदा किया तो है। तो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब ज़फर अमान साहब, सुनाता हूँ। आपने मैं जान की और जो इस रस्म का किसी ने कि आप दाद दे रहे हैं, सामने आके दाद दें और बल्कि अपना कलाम भी सुनाएं। बहुत बहुत खुशामदीद आपको कहते हैं प्रोग्राम में।
اور جمشید بھائی آپ کنٹینیو کریں. माशाअल्लाह. جی اب بنے گی بات جو مل بیٹھے ہیں 5 ہاں جی جی بالکل بالکل. اور ماشاء اللہ سے ہمیں ندیم ہاشمی صاحب بھی سن ظفر رہے صاحب ہیں, کو سلام. فیصل نواز چودھری صاحب بھی سن رہے ہیں. وعلیکم السلام. میں وچ کمنٹ بھی کیتا سی, ملک صاحب نے تے آواز ماری, میں آ گیا. ہاں جی میں کمنٹ بھی کیتا سی, میں کہ بڑی خوشی ہوئی ہے جمشید صاحب نو زندہ دیکھ کے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اتنی خوبصورت شاعری جو ہمیں عنایت کر نصر رہے بھائی ہیں. نے جو غزل کہی ہے وہ جی کچھ عنایت یوں کر. ہے کہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جی ظفر کیا حال ہے؟ داغے شکست و واہ نسبت تقدیر دیکھنا. کیا واہ 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 واہ. داغے شکست و نقبت تقدیر دیکھنا. واہ. تم بھی نہ میرے پاؤں کی زنجیر دیکھنا. کیا کہنے کیا کہنے. واہ ہائے ہائے ہائے, کیا بات. داغے شکست و نقبت تقدیر دیکھنا. تم بھی نہ میرے پاؤں کی تم زنجیر بھی نہ میرے پاؤں دیکھنا. کی کیا کہنے. زنجیر واہ. دیکھنا. تم بھی گھسیٹنا مجھے. واہ. تم بھی گھسیٹنا مجھے. یہ نیٹ کا مسئلہ ہے تھوڑا سا. جی 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 نہیں انشاءاللہ ہو جائے گی آواز ان کی. بہت عنایت ہے ظفر بھائی کی کہ آپ یہ تشریف لے آئے ہمارے سامنے. ماشاءاللہ. میں کچن چ بیٹھا ہویا وا, باقی کمرے چ بچیاں دی حکومت ہے اس ٹائم. چلو اچھا ہے, اچھی گل ہے. ابھی بچیاں دی حکومت تو بھی کتنی. عشق تھا اے یار نظر. واہ. کچھ کر دیا ہے وقت نے تحریر دیکھنا. کیا کہنا. جمشید بھائی آپ دوسرا شعر ہم نہیں سن پائے. تم بھی گھسیٹنا مجھے. نہیں سن سکے, میں دوبارہ آپ کی زبانی نہیں سن سکے. جی جی دوبارہ عنایت کریں جی. داغے شکست و نقبت تقدیر دیکھنا. واہ. تھی نہ میرے پاؤں کی زنجیر دیکھنا. بہت خوب. تم بھی گھسیٹنا مجھے مٹی پہ منہ کے بل. واہ. ہائے 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 ہائے. تم بھی گھسیٹنا مجھے مٹی پہ منہ کے بل. تم بھی نہ میری عزت و توقیر دیکھنا. کیا کہنا. آ گیا بالکل. واہ 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 واہ. دل پر جو لوح عشق تھا اے یار کم نظر. اے یار کم نظر. واہ. دل پر جو لوح عشق تھا اے یار کم نظر. کچھ کر دیا ہے وقت. واہ واہ واہ. کچھ کر دیا ہے وقت میں تحریر دیکھنا. واہ. کوئی حد میں تحریر دیکھنا. دل خواب دیکھنا تیری بزم سال کے. کیا کہنا. شب درد دل کے روپ میں تعبیر دیکھنا. کیا کہنا. دن راستوں کے ساتھ بکھرنا گلی گلی. کیا کہنا. دن راستوں کے ساتھ بکھرنا گلی گلی. کیا کہنا. کیا کہنا. واہ. جی جی دن راستوں کے ساتھ بکھرنا گلی گلی. نیٹ کا پھر ان کا ہو گیا تو محل اتنی دیر. اب آپ ظفر بھائی آپ شامل ہو گئے ہمارے ساتھ. آپ اپنا کلام عنایت کریں جب تک دوبارہ سے یہ شامل ہوتے ہیں جمشید بھائی, تو ان کو اپنی غزل مکمل کر لیں گے. تو آپ سے بہت احترام سے گزارش ہے کہ اپنا کلام ہمیں عنایت کریں. ہمارے ساتھ جناب بقا بلوچ صاحب تشریف رکھتے ہیں. جی ظفر ہمارے ہاں
उर्दू और पंजाबी के उन शुरा में शामिल हैं, बल्कि शुरा में शामिल नहीं हैं, वही वाहिद शायर हैं जो इन दोनों जुबानों में एक बड़ी मुनफरद अंदाज में अपने ख्यालात को सामने लाते हैं। बेशक बेशक, इनको किताब पे अवार्ड भी मिला है इनको, और उसकी बहुत अवार्ड छोड़ दीजिए, वो आ जाएंगे, अवार्ड तो खुद आ रहे हैं, ये नहीं भाग रहे। दूसरी बात ये है कि इस हिजर के दौरा में इन्होंने जो अपनी शायरी की है, खास तौर पर पिछले 2 साल से पंजाबी जुबान में, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपके सामने पाकिस्तान और उस खित्ते के हालात जो हैं वो सामने आ जाएंगे। इनके कई मिसरे जो हैं और इनके कई अशआर जो हैं वो पूरे उन सानहात को सामने ले आते हैं जिन्हें पाकिस्तान में तो बिल्कुल दबा दिया जाता है। उन पर हमारे नाम नहाद मुसन्नफीन, शोरा, अदीब और बड़े वो जो हमें कहते हैं तमाशा देखते जाओ, वो तक कलम नहीं उठाते, जुबान से वो क्या कहेंगे। तो ज़फ़र का ईमान है कि दियारे गैर नहीं, अपने इस वतन सानी में रहते हुए अपने आबाई वतन के हालात को अपनी शायरी में इस तरह उभारा है और इस तरह इबारे इस्तेमाल किए हैं कि पढ़ने वाला खुद महसूस कर लेता है कि ओए ये कहाँ की बात हो रही है, और ये बड़ा हुनर है। जी इनायत करें। मक्तार आ गया है वो, जी हम चले आप, हाँ जी पेश करें, जी इनायत करें। नसर भाई इसमें लाहौर की याद आएगी मुझे। जनाब हम आपसे क्यों कहा है कि आपकी जुबानी सुने, दुख अपना और जुबानी आपकी। वाह वाह वाह, जी जमशेद नौजवान जब नौजवान था, वाह जमशेद नौजवान था अजब हमको याद है। वाह जी जमशेद नौजवान था अजब हमको याद है, ये वक्त भी ना उसे दिलगीर देखना। हाँ देखना। जी क्या खूबसूरत, जिस वक्त देखना उसे दिलगीर देखना। क्या कहने बहुत मोहब्बत। आप दूसरों को भी जरा सुने। जी बिल्कुल। नहीं अब चलते हैं हम मोहतरम जनाब ज़फ़र अबान साहब की तरफ, और उनसे सुनते हैं। तो बहुत ही गुजारिश है आपसे और एहतराम से कि आप हमें अपना कलाम अनायत फरमाएं। जनाब मोहतरम ज़फ़र अबान साहब डेनमार्क से हमारे साथ तशरीफ लाए हैं, तो उनसे सुनते हैं। जी जमशेद साहब को लो ते मलिक साहब को इजाजत लेके ते मैं बलोच साहब दी नजर करदा शाह। जी नवाजिश। मेरे उजड़न दी सूरत हो रही है। वाह मेरे उजड़न दी सूरत हो रही है, जिवें मेरी हमायत हो रही है। क्या मार डाला हमें दोस्तों ने। मेरे उजड़न दी सूरत हो रही है, जिवें मेरी हमायत हो रही है, ते तू दरबारी कसीदे सुन रहा है। वाह तू दरबारी कसीदे सुन रहा है, तेरी चौकां च गिबत हो रही है। क्या सोनी जी गल कीती जी। तू दरबारी कसीदे सुन रहा है, तेरी चौकां च गिबत हो रही है। हवस जिस्मां दी नावा आशिकी दा। हवस जिस्मां दी नावा आशिकी दा। मोहब्बत विच भी बिदत हो रही है। मोहब्बत विच भी बिदत हो रही है। वाह हवस जिस्मां दी नावा आशिकी दा, मोहब्बत बिदत हो रही है। ते मैं लिखना चाह रहा सी पीड़ा बारे। दोबारा कहना होगा। मैं लिखना चाह रहा सी पीड़ा बारे, तेरे करके सहूलत हो रही है। तेरे करके सहूलत हो रही है। मैं लिखना चाह रहा सी पीड़ा बारे, तेरे करके सहूलत हो रही है। जिवें अन्नी नूं पीना पै नहीं जांदा। जिवें अन्नी नूं पीना पै नहीं जांदा।
ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੀ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਤਨੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਆ ਜੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਵਾਹ ਕੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੀ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਤਨੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਦੀ ਜਿਬ ਤੇ ਅੱਖਰ ਬੀਜਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਜ਼ ਕਾਦ ਫਿਕਰਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਜੀ। ਜ਼ਫਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਦੀ ਜਿਬ ਤੇ ਅੱਖਰ ਬੀਜਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਦੀ ਜਿਬ ਤੇ ਅੱਖਰ ਬੀਜਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਦੀ ਜਿਬ ਤੇ ਅੱਖਰ ਬੀਜਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਨਗਰ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਫਰੀ। ਅਗਰ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਫਰੀ, ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਉਜੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਫਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜ਼ਫਰ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਕਸੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸੀ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰੀ ਕਸੀਦੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਗਿਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇਨਾਇਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਨਾਇਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਹ 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 ਜੀ। ਚੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ। ਤੇ ਇੰਜ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ। ਇੰਜ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ। ਅੰਨੇਵਾਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਤਬਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਅੰਨੇਵਾਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਤਬਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੱਜਣਾ ਸਾਡੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜੀ, ਕੁੱਜਣਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਕੁੱਜਣਾ ਸਾਡੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜੀ, ਕੁੱਜਣਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਰ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਈ ਸੂ। ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਈ ਸੂ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ੇਨੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ੇਨੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਮਰਜ਼ਾ ਜੀ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਜ਼ਫਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਮੰਠਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਜ਼ਫਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਮੰਠਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ। ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ है। हाय हाय तो हमारी जो है 1 घंटा 4 मिनट की नशरियात हो चुकी हैं। तो अब
हमारा दिल तो बहुत कर रहा है कि हम मोहतरम जफर अवान साहब से बहुत और सुने, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बातें ये कर रहे हैं पंजाबी में और कलाम में, लेकिन टाइम में इससे पहले कि आप इख्तितामिया हमें छुट्टी करवाएं, मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है कि जफर आप शायद सुनते रहे हैं शुरू से, लेकिन बका साहब से कोई मुख्तसर सी गजल 4-5 जी वही मैं अर्ज करने लगा था, बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात नसर भाई कर दी। मैंने कहा इख्तितामिया गजल बका बलोच साहब से सुन के तो फिर इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तो बहुत ही तो एहतराम के साथ गुजारिश करेंगे मोहतरम बका बलोच साहब से कि आप एक गजल अनायत करें जी आखिर में। अब नहीं दर्द छुपाने का करीना मुझमें, अब नहीं दर्द छुपाने का करीना मुझमें, क्या करूं बस गया एक शख्स अनोखा मुझमें, नहीं दर्द छुपाने का करीना मुझमें, क्या करूं बस गया एक शख्स अनोखा मुझमें, उसकी आंखें मुझे मैसूर किए रखती हैं, उसकी आंखें मुझे मैसूर किए रखती हैं, वो जो एक शख्स है मुद्दत से सफारा मुझमें, वो जो एक शख्स है मुद्दत से सफारा मुझमें, मेरे चेहरे पे अगर कर्ब के आसार नहीं, मेरे चेहरे पे अगर कर्ब के आसार नहीं, ये न समझो कि नहीं कोई तमन्ना मुझमें, मेरे चेहरे पे अगर कर्ब के आसार नहीं, ये न समझो कि नहीं कोई तमन्ना मुझमें, और डूब तो जाऊं तेरी मद भरी आंखों में मगर, डूब तो जाऊं तेरी मद भरी आंखों में मगर, लड़खड़ाने का नहीं हौसला इतना मुझमें, डूब तो जाऊं तेरी मद भरी आंखों में मगर, लड़खड़ाने का नहीं हौसला इतना मुझमें, और अपनी मट्टी से रही ऐसी रफाकत मुझको, अपनी मट्टी से रही ऐसी रफाकत मुझको, फैलता जाता है एक रेत का सहरा मुझमें, अपनी मट्टी से रही ऐसी रफाकत मुझको, फैलता जाता है एक रेत का सहरा मुझमें, मैं किनारे पे खड़ा हूं तो कोई बात नहीं, मैं किनारे पे खड़ा हूं तो कोई बात नहीं, बहता रहता है तेरी याद का दरिया मुझमें, मैं किनारे पे खड़ा हूं तो कोई बात नहीं, बहता रहता है तेरी याद का दरिया मुझमें। शुक्रिया जनाब, मेहरबानी, नवाज। क्या खूबसूरत गजल आपने इनायत की है। और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जो उर्दू लिटरेचर एंड कल्चर इंटरनेशनल के ज़ेरे में पेश किया गया, और हम तमाम मेहमान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ उन्होंने वक्त दिया हमें और हमें साथ शामिल हुए, और स्पेशली खुसूसी तौर पर जो जफर अवान साहब ने हमें टाइम दिया और हमारे साथ शामिल हुए, और इतनी खूबसूरत पंजाबी की उन्होंने हमें कलाम सुनाया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नसर भाई जो है उनका शुक्रिया, और बका बलोच साहब और जमशेद मसरूर साहब का शुक्रिया, और तमाम नाजरीन का भी जिन्होंने हमें दाद दी और हमें सुनते रहे, हमारे साथ शामिल रहे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खुदा हाफिज कहते हैं सबको। नसर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं यही कह रहा था कि अगला प्रोग्राम जो है वो जफर को अभी से बंद कर लें। इनको करते हैं, इनको बंद करना पड़ेगा अब लाजमी। ये बहाने नहीं चलेंगे। जी नहीं, इनको पकड़ना पड़ेगा बिल्कुल। तो चले ठीक है जी, खुदा हाफिज। अब एंड करते हैं। बका साहब, अल्लाह आपको